Okay, so everyone is back. Let's continue. हम बात ये कर रहे थे कि टाइम क्या आएगा. So 10 उस साइड पे चला जाएगा और फिर -9.81 उससे डिवाइड हो जाएगा. So 10 over 9.81, we're getting around 1.02 seconds. यही टाइम आ रहा है हमारे पास. This is the time to go up. अब अगला सवाल जो है उसमें आपने अपनी इंट्यूशन यूज करनी. You don't need calculations for it. How much time for the entire journey? Total time क्या होगा? Total time for the entire journey. ये कैसे करेंगे बच्चों? बॉल को ऊपर जाने में लगे 1.02 सेकंड्स, नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? सर सेम टाइम लगेगा. सेम टाइम लगेगा बिकॉज सेम एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, सेम उसने डिस्टेंस कवर करना है, एवरीथिंग इज द सेम, सो सेम टाइम लगेगा. सो यू कैन से टाइम टू गो अप equals time to come down. So all you have to do is 1.02 plus 1.02 equals 2.04 seconds, and that should be your answer, total time. Okay, let's ask more questions about this situation. इसमें हम maximum जितनी भी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है इस बॉल के बारे में सारी निकालेंगे. एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा it will ask for different pieces of information, and it might not ask you for information, it will not ask you for answers with such small broken parts. मैं बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन, राइट. हो सकता है वो कोई ऐसा क्वेश्चन करे जिसमें आपको खुद से 2-3 स्टेप्स बना के सॉल्व करना पड़े क्वेश्चन, but you are learning right now to basically find everything about this projectile motion, every single thing. So we have talked about the vertical motion, how high it will go, how long it will take to go up, how long it will take to come down. अभी तक ये सारी बातें आंसर हो गई. Now let's talk about the horizontal distance covered by the ball. The horizontal displacement of the ball when it hits the ground. Basically this is called the range. इसको कहते हैं range. ठीक है? So this is what you have to find. What do we have to find? The range. Range यहाँ पे कैसे show करेंगे? ये चीज. This is what you need to find. Now, what are we talking about? Horizontal or vertical motion? Quick, शाबाश. Horizontal. Horizontal motion में कौन सी equation use होती थी? Speed is equal to distance upon time. But which speed is it? The horizontal speed or the vertical speed? Horizontal. Horizontal. And what is the time for the whole journey? Like ball को ऊपर जाके वापस नीचे आने में कितना time लगेगा? That time going to be different or the same one that we just found? Same. तो हमने अभी निकाला है कोई time होगा because the ball नीचे आएगी तो obviously the time is going to be the same, right, for both situations. So in these two situations, the horizontal and the vertical motion, what is that one common quantity that will be the same for both situations? It is the time. Horizontal displacement vertical displacement से different है. Horizontal velocity vertical velocity से different है. Horizontally कोई acceleration नहीं हो रही, vertically acceleration है. But the time is the same between these two motions, right? So we have a very simple equation. Horizontal velocity is equals to horizontal displacement over time, and we need to find out the horizontal displacement. That will be Vx multiplied by t. So Vx क्या आया था? Vx आया था 17.3, right? The horizontal component of the velocity. So 17.3 multiplied by how much time? 2.04.
सो इससे हमारे पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या आ रही है? 35.3. 35.3 meters. That is how far the ball will land from its starting position. ये बॉल की रेंज भी कहलाती है. Remember that. Okay, what else can I ask you about this? Up now, the question that I'm asking now is probably the most complex, right? ये क्वेश्चन कहता है कि बॉल की कोई भी रैंडम पोजीशन उठा लें. आई कैन गिव यू एनी रैंडम वैल्यू ऑफ टाइम. बॉल का पूरा जर्नी कितना टाइम का था? 2.04 सेकेंड्स का. आई कैन गिव यू एनी रैंडम वैल्यू ऑफ टाइम. आई कैन से 0.86 सेकेंड्स, आई कुड से 1.5 सेकेंड्स, आई कुड से 1 सेकेंड. कोई भी वैल्यू दे सकता हूं मैं आपको टाइम की, और मैं कह सकता हूं कि मुझे उस टाइम पे बताओ कि वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा. ये सारी बातें मुझे उस बॉल के बारे में बताओ. सो लेट्स डू पार्ट्स लाइक दिस. सो आई एम गोइंग टू से नाउ व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी. गिव मी द रिजल्टेंट वेलोसिटी. मुझे सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं चाहिए, बल्कि मुझे कंप्लीट रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए एट टाइम 0.8 seconds. I want the resultant velocity of the ball at this time from the beginning. Okay. So how would we do that? First of all, हमें ये realize करना है कि 0.8 seconds में बॉल रफली कहाँ होगी. अब बॉल कहाँ पे होगी? मैं 3 पोजीशंस बनाता हूँ, एंड यू कैन मे बी टेल मी कि कौन सी पोजीशन सही है. एक पोजीशन 1 ये है, पोजीशन 2 ये है, पोजीशन 3 ये है. व्हाट डू यू थिंक रोमान, ये कौन सी पोजीशन में बॉल 1, 2 या 3 में से अंदाजन अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकेंड्स में 1 पे? ये आपने कैसे डिसाइड की बात? या आपने ऐसे डिसाइड की कि भाई द टाइम टू गो अपवर्ड वाज 1.02 सेकेंड्स, द entire journey was 2.04 seconds. तो मैंने जो आपको टाइम बताया वो हाफ से कम बताया. So the ball will be somewhere here. अब यहाँ पे बॉल को मैंने बना लिया. बॉल का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बनाते हैं वेलोसिटी का. ठीक है, बॉल का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बनाते हैं. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसा होगा? ऐसा होगा. और वर्टिकल कंपोनेंट कैसा होगा वेलोसिटी का? ऐसा होगा. राइट? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का बॉल का यहाँ पे इस तरह का होगा. नाउ द थिंग टू अंडरस्टैंड इज, थिंग दैट वी लर्नड वाज कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ क्या होता है. व्हाट हैपेंस टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ओवर टाइम. इस पूरे जर्नी में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ क्या होता है? लेट्स गो एंड टेक अ लुक. हमने लिखा हुआ है यहाँ पे. व्हाट डज इट से? इट विल रिमेन कांस्टेंट. Vx तो चेंज ही नहीं होता. सो मतलब इनिशियली जो Vx था बाद में भी Vx वही होगा. सो व्हाट वाज द इनिशियल वैल्यू ऑफ Vx? 17.3. राइट? सो अब हमने क्या करना है, हमने नीचे जाना है और सबसे पहले हम बॉल का ये बॉल बना लेते हैं अपनी, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी Vx जो है वो लिख लेते हैं 17.3 meters per second होगा. Now what will be the vertical component of the ball? वर्टिकल कंपोनेंट के साथ क्या होता है? जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो डिसेलरेट होगा, वो कम होगा. जब आप बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो उसका जो वेलोसिटी है वो कम होती है ना. सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग टू द वर्टिकल कंपोनेंट. इट्स गोइंग टू डिक्रीज. इवेंचुअली व्हेन द बॉल रीचेस मैक्सिमम हाइट, the vertical component becomes 0, and then when the ball starts to come back down again, the vertical component starts increasing again, right? So the vertical component initially was 10, so definitely यहाँ पे 10 से तो कम ही होगा. We can find out using the equations of motion, using the equations of motion. Okay, so यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखते हैं कि 0.8 सेकेंड्स बाद बॉल का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा. सो लेट्स डू दैट.
कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं? यू हैव टू फाइंड द फाइनल वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी. You know that initial velocity was 10. You know the time. You know the acceleration. So which equation can you use? Final velocity, initial velocity, time, acceleration. ये किस में आती है? V is equals to U plus AT. And this is for obviously vertical motion. This equation is being applied for vertical motion. Okay? So इसको यहाँ पे सिर्फ vertical components को use करना है. Initially क्या था component? 10 था. एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? -9.81. दिस हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड कि माइनस साइन क्यों होगा. एंड हाउ मच टाइम डिड दिस? 0.8 सेकंड्स. सो 0.8 सेकंड्स में वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज होके कितना हो जाएगा? दैट्स व्हाट द इक्वेशन विल टेल अस. सो व्हाट डज इट से? क्या कहती है इक्वेशन हमसे? क्या आ रहा है? 2.2 meters per second, right? 2.2 meters per second. ये वैल्यू आ रही है हमारे पास Vy की. So the vertical component of the velocity Vy is how much? 2.2. Now what will be the result? Resultant कुछ ऐसे होगा. रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? दो वेक्टर्स हैं आपके पास और दो वेक्टर्स का आपने रिजल्टेंट निकालना है. हाउ डू वी फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स? हेड टू टेल रूल सबको याद होना चाहिए. रिजल्टेंट वेलोसिटी ये आपकी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. इससे हेड से आपने बना ली वर्टिकल वेलोसिटी. एंड दिस हियर इज गोइंग टू बी माय रिजल्टेंट वेलोसिटी. ये हो गई Vx. नीचे वाली हो गई Vx. ये हो गई Vy. Vx की वैल्यू क्या है? 17.3. दिस इज ओनली 2.2. सो ये कैसे निकलेगा भाई? राइट एंगल ट्राइंगल है ना. सो हाउ वुड यू फाइंड द हाइपोटेन्यूज? पाइथागोरस थ्योरम से. सो V कैसे आ जाएगा? 17.3 स्क्वायर्ड प्लस 2.2 स्क्वायर्ड और उसका अंडर रूट. So what is the resultant velocity? क्या आ रही है? 17.43. 17.43. 17.43. So let's just write 17.4 meters per second. That is your answer. अब इसका आपसे एंगल भी मांग सकते हैं. इसका आपसे एंगल भी मांग सकते हैं. What would this angle be? So आप देखोगे कि एंगल बहुत छोटा है. Initially the angle was very steep. The ball was going up at an angle of 30. Now this angle will be quite small. So इस एंगल को भी हम निकाल सकते हैं. थीटा आ जाएगा यहाँ पे. tan इनवर्स कर सकते हो, right? You can do tan inverse 2.2 over 17.3. Simple trigonometric ratios. तो इससे आपके पास थीटा क्या आ रहा है? थीटा की वैल्यू tan inverse 7.2. 7.2, right? So that means it's a very small angle, right? हमें पता चल रहा है कि बॉल अब मोस्टली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रही है. इट्स नॉट अ वेरी स्टीप एंगल, राइट? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड अबाउट द मोशन ऑफ द बॉल? इस बात को समझो. ये है बॉल का मोशन, राइट? लेट्स जस्ट ड्रॉ द बॉल एट डिफरेंट पोजीशंस and try to understand what's happening to each component of the velocity. अब हो क्या रहा है बच्चों? यहाँ पे बनाई बॉल. बॉल इज गोइंग लाइक दिस, राइट? यहाँ पे बनाई बॉल. बॉल इज नाउ गोइंग स्लाइटली लाइक दिस. यहाँ पे बनाई बॉल. इट्स नाउ गोइंग लाइक दिस. यहाँ पे बना लेते हैं बॉल को बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पे. द बॉल इज गोइंग लाइक दिस. यहाँ पे बॉल is going like this. So you can see that the direction of the ball is changing. क्या हो रहा है यहाँ पे? What is happening to each component? This is the Vx component. It does not change. It remains constant. Vx उतना ही रहेगा. This will be equal to Vx. ये है ही horizontal. Vx does not change over time. I've tried to keep the size of each arrow the same.
मैंने कोशिश की है कि मैं जितने भी ग्रीन एरोज बनाऊं उनको सेम साइज का बनाऊं, और मैं ये येलो वाले एरो को छोटा कर लेता हूं, इनके बराबर ले आता हूं। एक मिनट यार, इसको मिटा के ही लिखे। सो दिस वन विल बी ऑल्सो इक्वल टू Vx, right? Horizontal component does not change. Then what happens to the vertical component? You can see the vertical component was initially very much bigger, and that is why the, क्योंकि vertical component ज़्यादा बड़ा है velocity का और horizontal component छोटा है, तो इसलिए the ball is traveling at a steeper angle. But then because of deceleration, the vertical component starts to get smaller and smaller, and that's what we have basically calculated, right? अब यहाँ पे vertical component 0 हो जाएगा बिल्कुल highest point पे। अब नीचे जाते हुए vertical component नीचे की तरफ increase होना शुरू हो जाएगा। Let's take a look at a few other points. Right, so if I draw the ball here at this point, तो यहाँ पे अगर हम बॉल को बना ले तो अब हमारी बॉल कैसे जा रही है, ऑलमोस्ट यूं जा रही है। इट्स नाउ गोइंग डाउन एट अ स्टीपर एंगल। The horizontal component is still the same, right? But the vertical component is now decreasing, oh sorry, increasing downwards. नीचे की तरफ accelerate कर रहा है। Look at this picture and that should tell you कि क्या हो रहा है इस पूरी सिचुएशन में। समझ में आ रही बात? सारी सिचुएशन क्लियर हो रही है? Alright? Yes, sir. Okay, good. So now, I mean, हम इसमें और भी questions बना सकते हैं. I can give you a part G and a part H as well. But अब थोड़ा सा different situations को witness करते हैं. Let's try and look at a few different situations. A few other different situations that you will be dealing with is, एक और example है वो इस तरह की आएगी, that you have a building, right? And a ball is released horizontally from the building with a velocity of, I don't know, 20 meters per second. Ball released horizontally. कैसे release हुई ball? A ball is thrown horizontally from a building of height. Let's give you a random height of 50 meters. Of height 50 meters. ये लगा। So now I can ask you a bunch of questions about this situation. पहले तो ये देखो ना बॉल ट्रेवल कैसे करेगी. Let's make the path of the ball. इस तरह ट्रेवल करेगी बॉल. एक मिनट, थोड़ा सा स्ट्रेट जाएगी, but then it's mostly going to travel like this, right? अगर ये मैं अपना ग्राउंड बना लूं, this is the ground, right? So the ball is going to hit the ground here, and it can hit the ground with a bunch of different velocities and everything. So बहुत सारे question आ सकते हैं हमारे ज़हन में. So let's make a few questions about this, and let's try and understand. So how far will the ball land from the building, right? पहला सवाल मेरे ज़हन में ये आया कि भाई ये बॉल कितना दूर जाके गिरेगी. अब कौन चीता है जो यहाँ पे इसको सॉल्व करेगा? Is this question vertical motion or is this question about horizontal motion? सोचो, इस बात का तो कोई जवाब दे दे मुझे. अली तुम ही बता दो यार, तुम गायब हो आज, बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे मेरी बात का. अली okay, can anyone else tell me? Ryan beta, is this question about horizontal motion or vertical motion, the part A? Sir, this is about horizontal horizontal motion. motion. अच्छा, अब horizontal motion में कौन सी इक्वेशन यूज करते थे हम? Sir,
for horizontal में हम speed is equal to distance over time. वेरी गुड. हम इक्वेशन यूज करते थे वी एक्स इज इक्वल्स टू जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है अपॉन टाइम. अब इसका मतलब है कि अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको, अच्छा अली कह रहा है आई हैव माइक इशू. पढ़ लिया बेटा मैंने, वरना मुझे लग रहा था तुम सो रहे हो. अच्छा, अब आप कह रहे थे क्या नाम है रयान, कि ये वाली इक्वेशन यूज करनी है. अब इस इक्वेशन में आपको निकालना क्या है, हाउ फार, राइट, यू हैव टू फाइंड एस एक्स, बट टू फाइंड एक्स टू नो कि टी की क्या वैल्यू है. तो पहले तो मुझे बताओ वी एक्स की क्या वैल्यू है बेटा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी एक्स? 20. 20. बिल्कुल. अच्छा, इज दिस कंपोनेंट गोइंग टू चेंज थ्रू आउट द मोशन? No, sir. ओके, बिल्कुल. अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि क्या हमारे पास टाइम की वैल्यू है? क्या हमें टाइम पता है कि बॉल को नीचे टाइम कितना लगेगा? No, but we can find out. तो अब टाइम को ढूंढने के लिए अब हमें जाना पड़ेगा कौन से मोशन में? वर्टिकल में जाना पड़ेगा. वी कांट फाइंड द टाइम फ्रॉम हियर बिकॉज ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, सिर्फ ये पता है. तो अब कैसे सॉल्व करें इस इक्वेशन को? तो हॉरिजॉन्टल मोशन में तो हमारे पास है ही सिर्फ ये इक्वेशन. तो व्हाट कैन वी डू? लेट्स गो फॉर अ व्हाइल टू वर्टिकल मोशन एंड देन वी विल रिटर्न टू दैट इक्वेशन. जब हमें टाइम मिल जाएगा वहां से तो हम टाइम को बोरो करके यहाँ पे ले आएंगे. अब हम वर्टिकल मोशन में जा रहे हैं. वर्टिकल मोशन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज इंफॉर्मेशन डू हैव? टाइम के बारे में हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या चीजें पता होती है हमें वर्टिकल मोशन में? एक चीज तो हमें हमेशा ही पता होती है. व्हाट इज दैट वन थिंग दैट वी ऑलवेज नो अबाउट द वर्टिकल मोशन? बसीमा, आप बता सकती हो मुझे? व्हाट इज द वन थिंग दैट यू? Acceleration. यस, एक्सेलरेशन हमेशा पता होती है. अच्छा रयान, और क्या पता है मुझे वर्टिकल मोशन के? वैल्यू ऑफ वी वाई पता है? Yes, इनिशियल sir. क्या है? Sir, 0 है. जबरदस्त. इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है? 0 मीटर्स पर सेकेंड. क्योंकि बॉल जो है वो हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रही है इन द बिगनिंग, सो इट डज नॉट हैव अ वर्टिकल कंपोनेंट. वो वर्टिकल कंपोनेंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होगा फ्रॉम 0. फाइनल कंपोनेंट हमें नहीं पता, लेकिन फाइनल की जरूरत नहीं है. और क्या पता है वर्टिकल मोशन के बारे में इधर? व्हाट एल्स डू वी नो फ्रॉम दिस क्वेश्चन? Height. हाइट. सो दैट इज बेसिकली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, राइट? हमें ये पता है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी है. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हम बोल सकते हैं एस वाई. वी नो दैट इट इज 50 मीटर्स. सो व्हाट इक्वेशन फिट्स द डेटा? या ये डेटा कौन सी इक्वेशन में फिट होता है जिसमें हम ये तीन चीजें डाल के चौथी चीज विच इज द टाइम, वी वांट टू फाइंड आउट द टाइम, राइट? सो कहाँ पे फिट कर सकते हैं हम इन चार चीजों को? कौन सी इक्वेशन है? रिमेंबर, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता और ना ये भी हमें निकालनी है. सो व्हाट कैन वी डू राइट नाउ? चार इक्वेशंस हैं. देखो ये चार इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको रट जानी चाहिए. ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ. इफ यू डोंट मेमोराइज द इक्वेशन इट विल फाइंड इट वेरी हार्ड. अब यहाँ से देख के बता दो. टाइम निकालना है. इनिशियल कंपोनेंट से पता है, सिर्फ यू पता है, एस पता है, टी निकालना है और ए भी पता है. व्हाट इक्वेशन फिट्स द डेटा? दिस वन फिट्स द डेटा, राइट? यहाँ से हम टी निकालेंगे. आ जाओ, इसको लिखते हैं और सॉल्व करते हैं और टी निकालते हैं. सो एस इज इक्वल टू यू टी, एक मिनट, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अच्छा, अब नाउ वी डोंट नीड टू टेक ए एज -9.81 बाय द वे, क्योंकि अब हम क्योंकि देयर इज ओनली डाउनवर्ड्स, राइट? देयर इज नो अपवर्ड्स इन दिस क्वेश्चन. Since there is no upwards, we don't need to concern ourselves with plus and minus sign. क्योंकि अगर जहां पे up और down दोनों हो, then you have to take care of the sign. But when there is only down or only up, then you can just take that thing as positive and don't worry about minus signs and everything. आसान हो जाएगा आपका काम. तो हम यही करेंगे कि हम यहाँ पे पॉजिटिव ही रखेंगे सर. So S पता है 50 है,
u की वैल्यू हमें पता है 0 थी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 थी, तो 0 इंटू टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/2 एक्सेलरेशन 9.81 एंड मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। सो अब इसको सॉल्व करेंगे और क्या आंसर आएगा ये आप मुझे बताएं। 3 into 2 करेंगे, वहां जाके 9.81 डिवाइड करेंगे और फिर जो भी आएगा उसको अंडर रूट करेंगे। आर वी गेटिंग 3.2? आर वी गेटिंग 3.2 सेकेंड्स? Yes, sir. अब इसको उठा के वहां ले जाओ, चले जाए वहां पे वापस, टी वहां से सॉल्व हो गया, अब इधर वापस आ जाते हैं और अब सवाल आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास अब टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें इनिशियल कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता था 20, how much distance the ball will cover, sx what we want to find out, and the time is now 3.2 seconds. So we can find out the horizontal distance covered by the ball, 20 into 3.2, and that should be our answer, 64 meters. How far will the ball land from the building? It will land 64 meters further from the foot of the building. चलो जी, एक सवाल तो ये हो गया। अब देखो ना इस क्वेश्चन में, अब मैंने आपको जो क्वेश्चन आपसे पूछा, it wasn't so simple. It would be like a 3-mark question at least, because there is not one single step in this. You have to use one equation first from the vertical motion, find the time from there, and then use the equation of the horizontal motion, and then find the distance. So इसलिए आपको इसमें खुद सोचना पड़ा, तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ठीक है। जो 2 मार्क का क्वेश्चन होगा या 1 मार्क का क्वेश्चन होगा उसमें सिंपली एक स्टेप होगा। तो हमने ऊपर जितने भी पार्ट्स किए उसमें से कोई भी 3 मार्क्स का नहीं हो सकता, बिकॉज आई वाज आस्किंग वेरी वेरी सिंपल स्टेप्स अपार्ट फ्रॉम द लास्ट वन। लास्ट पार्ट जो मैंने पार्ट एफ किया था, हाँ वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और मुश्किल था। सो नाउ लेट्स आस्क वन मोर क्वेश्चन अबाउट दिस, पार्ट बी कर लेते हैं। अब पूछते हैं भाई कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द बॉल, टाइम टेकन फॉर द बॉल टू हिट द ग्राउंड, राइट? टाइम, ओ सॉरी ये तो हम पहले ही निकाल चुके, तो बात तो हमने निकाल ली ना पहले, पिछले पार्ट में टी जो निकाला है वो यही तो है। सो व्हाट कैन वी फाइंड आउट? हाँ, फाइनल रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बॉल when it hits the ground. So the ball is going to hit the ground and it might do that, it might hit it at an angle, या हो सकता है बिल्कुल ही वर्टिकल होके हिट करे, थोड़ा सा एंगल पे हिट करेगी बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कहीं जा नहीं रहा। सो व्हेन द बॉल इज गोइंग टू हिट द ग्राउंड इट विल हिट समवट लाइक दिस, ऐसे करके आएगी। एक तो यार इसमें सही बनता नहीं है, एक मिनट, क्या करते हैं, एक सेकंड, लेट मी जस्ट यूज द रूलर। सो द बॉल गोइंग टू कम एंड हिट द ग्राउंड समवट लाइक दिस, राइट? ऐसे करके हिट करेगी बॉल ग्राउंड को। अब ये जो वेलोसिटी है फाइनल, ये रिजल्टेंट इसका निकाल के देना है पूरा का पूरा। सो व्हाट डू वी नीड? वी नीड 2 थिंग्स। हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी पिछले पार्ट में भी निकाली थी, डू यू रिमेंबर हाउ वी डिड इट? हमें टाइम दिया हुआ था एक, हमने बोला था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं होता, तो जो शुरू में था वही रहेगा, उसको हमने 17.3 रखा था। और वर्टिकल कंपोनेंट हमें इनिशियली पता था और फाइनल हमने निकाल लिया था v = u + at से। अब हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों आ गए थे, एंड देन वी फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेलोसिटी बाय द पाइथागोरस थ्योरम। सो अब यहाँ पे भी यही करना है, राइट? सो बॉल तकरीबन ऐसे आके हिट करेगी ग्राउंड को, द बॉल इज गोइंग टू हिट द ग्राउंड somewhat like this, right? But it will have 2 components of the velocity. One will be the horizontal component, one will be the vertical component. The horizontal component will be Vx, the vertical component will be Vy. Which one do we know already? Come on Ryan, tum bata rahe ho. Which one do we know already? We know V. कौन सा? वैल्यू भी दे दो, Horizontal component. वैल्यू भी दे दो। Vx. Vx की वैल्यू बतानी है ना, Vx की वैल्यू क्या होगी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की क्या वैल्यू थी? जो इनिशियली थी वही होगी बाद में। इनिशियली क्या वैल्यू थी? 20, तो बाद में भी 20 रहेगी। सो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी स्टिल 20,
फाइनल कंपोनेंट क्या होगा वर्टिकल का, हमें नहीं पता। सो वर्टिकल मोशन की इक्वेशन लगाते हैं। हमें टाइम पता है, टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड वाज 3.2, राइट, हमने निकाला था। तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v is equals to u plus at. U is the initial vertical component, v is the final vertical component which we want to find, a is the acceleration, t is the time. So हमारे पास u की वैल्यू क्या थी इनिशियली, what was the initial vertical component of the velocity? भाई बॉल इनिशियली हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रही थी, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट Zero. जीरो था। तो यहाँ पे इसको जीरो डाल दें, एक्सेलरेशन को लें 9.81, टाइम आपको याद होगा 3.2 आया था हमारे पास, और v क्या हो जाएगा, सो व्हाट वुड इट बी, 9.81 into 3.2 and that should give you 31.4 meters per second. So हमारे पास ये आ रहा है 31.4 meters per second. So now what would be the resultant velocity? तो आप इसको head to tail बना लें, you don't have to do it again and again, but it's for practice, good practice है ना, कि आपको वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट याद हो जाते हैं। ये हो गया 20, इसके हेड से बनाओ 31.4 एंड देन ये हो गया आपका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालो जल्दी जल्दी से यार, एक बंदा, कम ऑन, सब चीजें मैं खुद ही करनी पड़ रही है, मजा नहीं आ रहा मुझे इसका। जी भाई क्या आया, 37.2. 37.2। सो इससे हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया फाइनल वेलोसिटी का, राइट, मैग्नीट्यूड तो आ गया, बट देखो वेक्टर है ना, वेलोसिटी इज अ वेक्टर। अगर मुझे बोला होता है सिर्फ स्पीड निकाल लें या सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकाल के दें, तो आई वुड हैव बीन डन विद दिस, बट लेट्स आल्सो फाइंड द डायरेक्शन। लाइक ये जो बॉल हिट कर रही है ग्राउंड को, ये जो बॉल ग्राउंड को हिट कर रही है यहाँ पे, ये कितने एंगल पे हिट कर रही है, ये एंगल कितना बन रहा है, इसको भी ढूंढ ले तो जबरदस्त हो जाएगा, राइट। So let's do that and then we will basically just end the class. I'll give you a bunch of questions to practice और फिर उसमें हम जो है वो आपकी टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। एंड ऑल्सो आई एम ऑल्सो गोना टेक अ टेस्ट, ठीक है, अब कभी भी टेस्ट हो सकता है पहले 2 चैप्टर्स का, और इंतहाई मुश्किल टेस्ट होगा, सारे पास पेपर के क्वेश्चंस होंगे। तो पहले 2 चैप्टर्स करवा दिए, प्लीज तमीज से बैठ के सब प्रिपेयर कर लेना। फॉर द सेकंड चैप्टर मोस्टली यू हैव द रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज वेल, सो देयर इज नो एक्सक्यूज, सारे नोट्स क्लास के हर चीज तुम लोगों के पास अवेलेबल है, ठीक है ना। प्लस देयर आर, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस देता हूँ होमवर्क, कुछ मैं छुड़वा देता हूँ, उनको आप खुद अपने ओन पे भी कर सकते हो, एंड एवरीथिंग इज रिटन कि कौन से पास पेपर से, यू कैन फाइंड द आंसर्स फ्रॉम मार्किंग स्कीम। सो इट्स जस्ट अप टू यू कि हाउ मच यू डेडिकेटेड यू आर, आप जितना टाइम लगाओगे उतना आप इम्प्रूव करोगे। एनीवेज एंगल जो है वो, अगर मैं ये वाला निकालूं तो ये एंगल बनता है अगेन tan इनवर्स 31.4 over 20, so that gives me how much, tan inverse 31.4 upon 20, और इससे आपके पास आ रहा है एंगल 57.5 डिग्रीज का एंगल आ रहा है। बट एक मिनट, ये एंगल जो मैंने निकाला है, इट्स नॉट द एंगल दैट आई मेड ऑन द डायग्राम। मैंने डायग्राम पे ये एंगल बनाया है, और जो मैंने अभी एंगल ढूंढा वो कोई और है। मैंने जो बेसिकली एंगल ढूंढा है वो यही है या नहीं है, एक मिनट, नहीं, मैंने हॉरिजॉन्टल से, हाँ यही एंगल है ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स एन ऑल्टरनेटिंग एंगल, राइट, ऑल्टरनेटिंग एंगल है। अगर आप मैं ग्राउंड को यहाँ पे बनाऊँ तो ये एंगल है वो बेसिकली, सो या इट्स द सेम थिंग, राइट। अगर वर्टिकल से मांगा होता एंगल तो इसको 90 से माइनस कर दे तो आ जाएगा आंसर। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीडेड टू फाइंड, और ये हमारे पास एंगल भी आ गया, यहाँ से बोल सकते हैं फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है जी, डायरेक्शन भी आ गई, ऑल गुड, ऑल ओके, सारा प्रोजेक्टाइल मोशन हमने कवर कर लिया। अब इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं बाय द वे, इसका एक रिवर्स केस भी आता है। इसमें क्या करते हैं कि एक दीवार बनी हुई है, राइट, सो आई एम जस्ट गोना गिव यू दिस सिचुएशन, आई एम नॉट मेकिंग यू सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन, बट एक दीवार बनी हुई है, राइट, एंड दिस इज द ग्राउंड,
and then you launch a ball from here at a certain velocity and at a certain angle. Now the question is कि ball ऐसे जाएगी, right? अब आपको अगर बॉल की मैं हाइट प्रोवाइड कर देता हूँ, बॉल की मैं आपको हाइट दे देता हूँ, राइट? और मैं इनिशियल वेलोसिटी बता देता हूँ और मैं बता देता हूँ कि ये डिस्टेंस कितना है, राइट? I can give you this distance. So there is a bunch of information given to you, and the question could be, will the ball go over the ball or will it go and hit the ball and then rebound? So that really depends on the values that you are given. ठीक है ना? तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? So इस तरह के क्वेश्चन जब आपके पास आएंगे तो आपने वही प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और फिर सॉल्व करना है, ठीक है? पोज द क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप। अभी जो है वो हम क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। I'll see everyone on Saturday. अच्छा, सैटरडे का एक स्कूल की वर्कशॉप है बहुत लंबी, सो आई वुडंट बी देयर एट द क्लास टाइम। हो सकता है मैं शाम में रखूं फिर वो क्लास, या हो सकता है वो ना हो पाए, हमें संडे को रखनी पड़े। मैं अभी से इन्फॉर्म कर सर। ऑलराइट सर आप फ्राइडे को क्लास सर वो आपने नोट्स का एक्सेस नहीं दिया। तुम्हें नहीं दिया? अच्छा, बाकी सबको आ गया, तुम्हारा रह गया। अभी करता हूँ, बस मुझे व्हाट्सएप पे अपनी ईमेल भेजो, मैं 5 मिनट में करता हूँ। भेजी हुई है। ओके, दोबारा से एक दफा भेज दो, वो दोबारा ढूंढना ओके। पड़ेगा। चलें, अल्लाह हाफिज़। सर आप कल क्लास ले सकते हैं, एज अवर एग्जाम इज ऑन मंडे, तो आप ये कल फ्राइडे को क्लास ले लें। कल देखता हूँ, शेड्यूल बहुत टफ है। सैटरडे को कंफर्म नहीं हो पाएगी, तो या फ्राइडे को या संडे को लेता हूँ। मैं इंशाल्लाह पता करके बताता हूँ। संडे को सही रहे। ठीक है सर। सैटरडे को मेरी हो नहीं पाएगी बिकॉज आई विल बी इन द वर्कशॉप। सो अब स्कूल वालों ने बुलाया हुआ, स्कूल वालों को तो मना नहीं कर सकते। वी डू अ जॉब देयर, सो ऑब्वियसली वी हैव टू गो। बट ये है कि आफ्टर मैं वापस आ जाऊँ, शायद सैटरडे की मैं इवनिंग को रख सकूँ या ऐसा कुछ कर सकूँ, बट लेट मी टेक अ लुक एंड देन आई विल टेल यू, ठीक है? जी संडे को सर, प्रॉब्लम हो जाए। अगर सैटरडे ना हो तो मंडे हो सकता है। मंडे को तो Monday। आपका टेस्ट है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इससे पहले रख लूँ संडे को, ठीक है? ओके ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आई गॉट द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह